and welcome to this evening lecture of the chemistry, physical chemistry. Hope I am audible to everyone, and video is getting bit blur, I think so. It will get clear soon. It will need a bit time. Hold a second. So, okay. So now, I think so. Video is bit blur. Am I right? Are you getting blur video? I can see it's a blur video. Okay, just wait. I think so. Soon it will get clear, or if not, then technically we'll do something for that. Okay. So now it's got clear. Okay. Thank you. Then thank you for your feedback. Let's move on. I think so. In last lecture we have continued with nuclear radiochemistry. In this chapter is in depth we have covered the theoretical part as well as numericals. Last 2 to 3 numericals has left, but I think so. This type of numericals we have completed number of types of numericals which are left in last. So, as per my opinion, whatever the numericals we have done, if you have gone through it very well, and if you understood that part, then whatever the numericals left, you can do it of your own. And I think this is the part of self-study, what has to be left for you, because each and everything, if we give it in solve form, then I think so, you won't be able to solve. So that's why I again appeal and I suggest that you should solve these numericals, whatever the remaining this one, and the chapter is declared from my side. If you have any difficulty in that chapter in any of the numericals, then you can let me know. Accordingly, we'll solve it. So today, as admin suggested, so just continue with the next chapter, and next chapter is nothing with the chemical equilibrium. So today, we'll continue with the chemical equilibrium. It's a next chapter, new chapter. So let's move to next. That is what the chemical equilibrium. Chemical equilibrium. This is the new chapter, what we are going to discuss. Chemical equilibrium. Hope everyone amongst us is compatible with this chapter. That is chemical equilibrium. That's again a bit interesting chapter, or very short chapter, small chapter, right? But it's an interesting chapter. That is chemical equilibrium, or in our daily routine life, it is must. It is used. Being this chemical equilibrium is a different word for you, but equilibrium is must. Equilibrium is must. So we have to discuss actually chemical equilibrium. जैसे मैंने बताया ये चैप्टर छोटा है, लेकिन काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफी डेप्थ है कॉन्सेप्ट्स की, और खास करके मैं स्टार्टिंग में सूचित करना चाहूंगा तो जो सारे बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो सारे बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए चैप्टर बहुत मैटर करेगा, खास करके जेई के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर काफी सारे बार एमसीक्यूज पूछे गए हैं. सो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका इस टाइप का चैप्टर है, मतलब छोटा चैप्टर है, मेनली 4 to 5 कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है. 4 to 5 कॉन्सेप्ट्स, वो चैप्टर की कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझना है, चैप्टर बिकम्स इजी, एंड उसी 4-5 कॉन्सेप्ट के ऊपर जेई नीट के अंदर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भले ही चैप्टर छोटा है, कॉन्सेप्ट छोटे हैं, 4-5 ही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने मेनली, लेकिन है बहुत बढ़िया, है बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स, और जो जेई नीट के अंदर भी इसलिए इसका वेटेज आता है, और ये टॉपिक जेई नीट पे भी आ जाता है. सो स्टार्टिंग इस चैप्टर के साथ काफी अच्छी तरह से बने रहिएगा कि in order to get this chapter because it has wide applications. मतलब ये भी बात आती है ना कि इस चैप्टर के ऊपर जेई में या नीट में क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं.
द रीजन बिहाइंड दैट, जनरली ये भी बात याद रखिएगा आप लोग कि अभी तक आपने 11th स्टैंडर्ड में आने तक आपने कई सारे चैप्टर्स पढ़े, कई सारे साइंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं और एग्जाम के टाइम हम लोग भूल जाते हैं, एग्जाम के बाद हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन कुछ बातें, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो जैसा जितना आप पढ़ते जाएंगे आगे के लाइफ में भी आ जाते हैं और रियल रूटीन लाइफ में भी ये टॉपिक्स हमें काउंटर होता है। और ये एक चैप्टर उस टाइप का चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम उस टाइप का चैप्टर है कि जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में हो सकता है कि आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद, मेडिकल कंप्लीट होने के बाद या कोई भी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके डेली रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं आप जॉब करेंगे, कहीं ना कहीं आप बिजनेस करेंगे, और उस जॉब के अंदर, उस बिजनेस के अंदर इसके कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जरूर। So being it the concepts given here in the chapter has the wide applications in many industries, these type of concepts are always forever, and that's why JEE NEET has a right space for such a concept which are forever, which have wide applications in different industries or in future industries. और ऐसे कॉन्सेप्ट जिस किसी चैप्टर में है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो या बायो का हो, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेस मिलती जरूर है। और इसलिए इस हिसाब से मैं बताना चाहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। चलो हटाते हैं हम लोग केमिकल वर्ड को, हटाते हैं इक्विलिब्रियम। साइंस में इक्विलिब्रियम जरूरी है, नो डाउट। हमारे लाइफ में भी इक्विलिब्रियम होता है कि नहीं होता है? एवरीवन अमंग्स यू नो होता है, जिसे हम लोग थोड़ा सा बैलेंस कहते हैं। मतलब चलो इक्विलिब्रियम वर्ड हम हटाते हैं, लेकिन बैलेंस वर्ड तो हमारे लाइफ में हम रखते हैं। उसका एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। हम लोग बचपन में, आप लोग सीसा के ऊपर खेलते थे, सीसॉ, सीसा के ऊपर हम लोग खेलते हैं। मतलब सीसॉ इस टाइप का होता है। सो सपोज दिस इज द सीसॉ लाइक स्ट्रक्चर, ये है सीसॉ। किसी गार्डन में आप जाए होंगे तो सीसॉ, जहाँ पे यहाँ पे एक बंदा बैठता है, यहाँ पे एक बंदा बैठता है, और हम लोग इस तरीके से आप लोग खेलते हो, दैट इज सीसॉ। सो दिस इज द सीसॉ। होता क्या है, सीसॉ के ऊपर इधर का वेट ज्यादा है तो सीसॉ यहाँ पे नीचे आएगा, और यहाँ का वेट ज्यादा है तो सीसॉ इस तरीके से रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों का वेट बैलेंस है तो इक्विलिब्रियम, एज लाइक दिस पोजीशन यू कैन कॉल इट दैट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। नहीं तो इस चीजों के समय एक का वेट बहुत ही ज्यादा है यार, दूसरे को मजा नहीं आएगा, बिकॉज दिस वेट विल गो डाउन और ये इतना एंजॉय नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा कंपेरेबल वेट होगा तो सीसा विल डू लाइक दिस, तो मजा आएगा खेल का आपको। सो ये बात होती है। उसके बाद दूसरे के एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारी सोच, इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट बात आती है। हमारे थिंकिंग में भी एक इंपॉर्टेंट बात आती है, एक सोच में एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें हमेशा बैलेंस सोचना पड़ता है, बैलेंस सोचना पड़ता है ना? कभी कभी आप देखिए हमारे भी मूड्स होते हैं, कभी कभी हमारे मूड बहुत ज्यादा स्विंग्स होते हैं, कभी थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं हम लोग, कभी थोड़ा सा ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं हम लोग, एंड दिस इज वेरी नेचुरल प्रोसेस, है ना? तो तुम लोग भी सफर करते होंगे, वैसे भी पैंडेमिक में तो काफी सारा डिप्रेशन में डाल दिया, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग, वी आर नॉट फॉर द आउटिंग, वी आर नॉट फॉर द not in the colleges, we are not able to meet with friends, we are not able to enjoy the street foods, we are not able to enjoy the rides and functions, है ना? So 100% that has created a lot of pressure, stress and strain, and that's why we are losing a lot on that side again. So it has created some pressure, some depressions, kind of things produce हो जाता है। लेकिन फिर भी इसके अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं कि इट्स एक ऐसा सर्टेन टाइम है, एक ऐसा टाइम है जो निकल जाएगा और विल कम अप अगेन टू द रूटीन और विल बी हैविंग सम डिफरेंट लाइफ। इसके अंदर हमारे कभी कभी डिप्रेस्ड मूड आता है, कभी कभी ज्यादा एक्साइटेड मूड आता है ना? बट दोनों भी ज्यादा समय तक नहीं चलते हैं, दोनों भी ज्यादा परफेक्ट नहीं होते, फाइनल नहीं होते। एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, वापस वी हैव टू कम टू द ग्राउंड विद बैलेंस स्टेट। कभी कभी डिप्रेस्ड स्टेट में जाएंगे, वापस वी हैव टू कम टू द बैलेंस स्टेट। So we have the balanced state, that is the equilibrium of the thinking too. That may sometimes go to the depressed state, that may sometimes go to the excited state. But the mean position always remains to the balance. That is called as an equilibrium. तो हमारी थिंकिंग में भी एक इक्विलिब्रियम होता है, हमारे लाइफ में भी एक इक्विलिब्रियम होता है। हमारे दिमाग के अंदर आने वाली सोच कभी-कभी अच्छी होती है, कभी-कभी बुरी होती है ना? कभी-कभी ऐसे थॉट आ जाते हैं, कभी अच्छे बुरे। These are also related with the equilibrium positions or positions. So in that sense you can say इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइंस के अंदर की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, खास करके केमिस्ट्री के अंदर की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो दिस इक्विलिब्रियम वी हैव टू स्टडी एक्चुअली व्हाट this chemical equilibrium is and how that has wide applications in number of industries or number of phenomena. That is what we are discussing here in chemical equilibrium. Actually equilibrium होता क्या है ये पहले समझना है हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर कि what is equilibrium। जैसे मैं बैलेंस कह रहा हूँ कि हमारी लाइफ के अंदर क्या, लाइफ हैज टू बी बैलेंस्ड।
सो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हमेशा लाइफ रहेगा तो भी कुछ टेंशन क्रिएट करेगा, और बहुत ज्यादा डिप्रेस लाइफ होगा तो वो भी टेंशन क्रिएट करेगा. इट हैज टू बी बैलेंस. समटाइम इट इज एक्साइटेड, समटाइम इट इज डिप्रेस्ड, बट mean position has to be in balance. तो that is meaning of equilibrium concept. तो साइंस के अंदर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, ये पहले हमें समझना है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम इस चैप्टर के अंदर. देन व्हेन वी कम टू द केमिकल इक्विलिब्रियम, at that end there are two types of reaction. There is nothing but the irreversible reaction, reversible reaction. हमें ये दो रिएक्शन समझने हैं कि what is reversible reaction, what is irreversible reaction. Once we understood this reversible and irreversible reaction, then we'll understood the equilibrium positions. Then we'll understood the chemical equilibrium, and there are some factors which affect this chemical equilibrium position. Let's see what is the content of this chapter. हम डिस्कस करें इस चैप्टर का कंटेंट क्या है. तो सबसे पहला कंटेंट है कि हमें केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन डिस्कस करना है, फिर हमें डिस्कस करना है व्हाट आर द फैक्टर्स which affect this chemical equilibrium process. कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, ये हमें डिस्कस करना है. फिर डिस्कस करना है यहाँ पे दैट इज यू कैन से लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन आपका बहुत ही बढ़िया लॉ हमारे यहाँ सामने 18वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने रखा हुआ है, जिसे आज की तारीख में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं. वो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें डिस्कस करना है, जिसके अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर दोनों उसके अंदर डिस्कस करना है. उसके अंदर फिर डिस्कस करें हम लोग ली-चार्टियर प्रिंसिपल. ली-चार्टियर नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स रखे हैं, खास करके इक्विलिब्रियम के बारे में. और खास करके अभी जो इंडस्ट्री है, बहुत सारी प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, वो सारे फार्मेक इंडस्ट्री है, देन देयर इज अ केमिकल इंडस्ट्री. वो सारे इंडस्ट्री में ली-चार्टियर प्रिंसिपल यूज किया जाता है, वो भी बहुत बढ़िया है. एंड ली-चार्टियर प्रिंसिपल के अंदर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट लाइक फैक्टर्स, ये आ जाता है. बस यही भी चैप्टर खत्म हो जाता है. तो बहुत सिंपल और सादा चैप्टर है. कॉन्सेप्ट भी बहुत मस्त है, जॉयफुल है, और हमारे डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है. दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम. We have to understand what is reversible reaction, what is irreversible reaction. We have to understand also what is chemical equilibrium, what are the factors that affects the chemical equilibrium, what is law of mass action, what is Lee-Chartier's principle and its applications. That's all. इतने simple concept chapter के अंदर discuss करना है. That's called chemical equilibrium. So let's be with us right from the starting. शुरुआत में जितने सारे कॉन्सेप्ट आएंगे छोटे छोटे आएंगे, दो चार कुछ चीजें आएंगी, वो एक बार हम समझते तो चैप्टर कुछ मुश्किल नहीं जाएगा. दैट इज यू कैन से केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है. जैसे मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम हमारे लाइफ में भी जरूरी होता है, साइंस में भी जरूरी होता है, और डेली चीजों में भी जरूरी होता है. तो क्या है ये इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं. सबसे पहले देखते हैं, देखिए वी हैव टू डिस्कस द केमिकल इक्विलिब्रियम. थोड़ा सा तो इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर चलना ही चलना है. बट इक्विलिब्रियम हैज टू बी देयर. जैसे मैंने बताया सीसो जैसे हम लोग खेलते हैं, तो सीसो खेलते तो सीसो के अंदर एक बैलेंस होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड इसका एक बैलेंस होता है. हम एटम की बात करते हैं, एटम एज अ होल, तो एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, बट न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. बट प्रोटॉन हैज द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज द नेगेटिव चार्ज, एंड बोथ आर बैलेंस्ड. किसी भी एटम के अंदर ऐसा नहीं होता कि प्रोटॉन बहुत ज्यादा और इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है प्रोटॉन्स बहुत कम है. इट्स नेवर हैपेंस, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा तो वो एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. एटम को एग्जिस्ट होने के लिए जितने नेगेटिव चार्ज उसके अंदर होते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है, अदरवाइज इट बिकम्स अ रिएक्टिव. आप देखिए सिंपल, हमने देखा हुआ है कि किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन ज्यादा बनेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव नेगेटिव उसे कैटायंस एनायंस कहते हैं. दे आर रिएक्टिव देन द नॉर्मल न्यूट्रल एटम, है ना. हम भी देखिए ना, हम हमेशा गुस्से में रहेंगे तो शायद ये दैट विल अफेक्ट आवर बॉडी और हम थिंकिंग, है ना, सबको अफेक्ट कर देगा. हम हमेशा एकदम हैप्पी मूड में रहेंगे तभी भी कुछ चेंजेस हो सकता है. देयर हैज टू बी अप एंड डाउन्स लाइक दैट. देयर हैज टू हैव द हैप्पी हार्मोन्स, देयर हैव टू हैव द डिप्रेस्ड हार्मोन्स. होते रहते हैं, होंगे, दैट इज अ वेरी नेचुरल थिंग. बट एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है दोनों चीजों का. वो इक्विलिब्रियम अगर कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा तो मुश्किल होता है. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन. दैट हैज टू बी अ बैलेंस्ड, एंड दैट इज व्हाट वी डिस्कस हियर इन द चैप्टर कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. सो लेट्स नाउ जनरलाइज कॉन्सेप्ट तो देखा हमने, अभी थोड़ा सा अप्लाई करते हैं दैट इज केमिस्ट्री के अंदर, और व्हाट इज दिस केमिकल इक्विलिब्रियम उसकी तरफ चलते हैं. सबसे पहले हम लोग चलता है उसका एक बेस देखते हैं कि व्हाट इज रिएक्शन एक्चुअली. तो द थिंग इज दैट वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट रिएक्शन. ओके, रिएक्शन, व्हाट इज दिस रिएक्शन. कई सारे रिएक्शंस हम देख रहे हैं. देयर आर मेनी एग्जांपल्स. दैट इज यू कैन से C+O2 gives you CO2, या फिर यू कैन से H2 plus Cl2 produces twice HCl. ये एग्जांपल है. There are many examples I can give here for the reactions. आप जानते हो ये basic examples जो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं.
Carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. Hydrogen reacts with chlorine to form hydrogen chloride. These are the two reactions what I have written here. अभी reaction होता क्या है? Reaction होता क्या है कि here are the reactant, the substances which react with each other and forms one or more products. Different, मतलब initial substance जो हमने लिया है वो react होके कुछ तो अलग substance हमारे सामने आ जाते हैं, तैयार होते हैं, उसे हम लोग reaction ऐसे कहते हैं. So it is the process in which one or more reactant react to produce one or more products. इन दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट एक ही है. अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं. एक रिएक्टेंट होगा उससे दो प्रोडक्ट मिलेंगे. जैसे कि मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा. दैट यू कैन से CaCO3 gives you COO plus CO2. अभी इसके अंदर देखिए ना, CO plus CO2, इसके अंदर दिखता क्या है कि रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो है. इसके अंदर रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट एक है. तो many possibilities are there. So reactant are the substances what we have initially taken. They react in any ways in any manner to produce a different product or products. एक product या ज्यादा products तैयार होते हैं उसे हम लोग reaction ऐसा कहते हैं. या transformation of one or more substance into another substance or substances is also called as a chemical reaction. ये आप अच्छी तरह जानते हो. Now ये तीन reaction के example मैंने दिए हैं और तीनों examples के अंदर आप देखते हो कि these are the reactant, these are the product. Reaction लिखने का एक तरीका होता है. Arrow के लेफ्ट वाला पार्ट जो उसे रिएक्टेंट कहते हैं और एरो के राइट वाला पार्ट जो उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं. सो दीज आर द रिएक्टेंट एंड दिस इज नथिंग द प्रोडक्ट. दीज आर द रिएक्टेंट, दिस इज नथिंग द प्रोडक्ट. दीज आर द रिएक्टेंट, दिस इज नथिंग द प्रोडक्ट. दिस इज द रिएक्टेंट, दिस आर द प्रोडक्ट. सो दैट्स हैपेंस हियर. तो रिएक्शन हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है. रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, फिर एरो लिखा जाता है, एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट लिखा जाता है. ये रिएक्शन लिखने का नॉर्मल रिएक्शन लिखने का तरीका है. सो ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शन दो टाइप के होते हैं. एक रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन. पहले हम ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. सो दिस इज द सिंपल रिएक्शन. वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. दैट विल गिव यू अ प्रॉपर आईडिया फॉर दिस वन. ठीक है. सो लेट्स मूव टू डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. सो वी कैन से हियर रिवर्सिबल रिएक्शन. अब ये रिएक्शन वर्ड लिखने का तरीका होता है REAC REAC रिएक्शन लिखने का शॉर्ट तरीका है. इक्विलिब्रियम लिखने का भी शॉर्ट तरीका है. जैसे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं. वैसे रिएक्शन कैसे लिखा जाता है REAC. इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है EQU. दिस आर द शॉर्ट वे, है ना. मतलब सी दिस आर द शॉर्ट वे टू राइट द वर्ड. सॉल्यूशन हैज टू बी डन लाइक दिस वन. रिएक्शन इस तरीके से, इक्विलिब्रियम इस तरीके से. इस चैप्टर के अंदर इक्विलिब्रियम बार-बार लिखना है तो आप इस तरीके से इक्विलिब्रियम लिखते हो. इवन बोर्ड एग्जाम में भी लिखते हो तभी भी ये चलेगा. इट इज एक्सेप्टेड. मतलब दिस शॉर्ट फॉर्म्स आर वाइडली एक्सेप्टेड इन साइंस. सो इस तरीके से लिखा जाता है. सो दिस व्हाट वी कैन से. सो EQU दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. REAC reaction. SOL solution. These are the way how we write the words. So यहाँ पे I have written reaction. We are here irreversible reaction, we have reversible reaction, and we have to have the examples of this and we have to have the points of difference between the story. अभी irreversible reaction देखिए, we can have here C6H12O6. Okay, this is what we can say sugar. This sugar is heated. C6H12O6, this sugar is heated. We got here 6CO2 plus 6H2O. This is carbon dioxide and this is you can say water. अभी हमारे घर के अंदर का भी एग्जांपल है. घर के अंदर का भी एग्जांपल है. So this is you can say irreversible reaction. And here we can have the reversible reaction. अभी reversible reaction क्या है? See here you can say CaCO3 gives you CaO plus CO2, and I did like this one. Here you can say H2 plus Cl2 gives you twice HCl, like this one. So ये होता है. So these are the two examples of this reaction that you can say irreversible reaction and reversible reaction. अभी देखिए समझना क्या है इसके अंदर कि irreversible reaction क्या है, reversible reaction क्या है. पहले irreversible को देखते हैं. This is nothing but the glucose, sugar. हमारे घर के अंदर जो शुगर होता है, हम चाय बनाने के लिए जो यूज करते हैं वो शुगर है. C6H12O6 is इसका molecular formula. This sugar is heated, it produces carbon dioxide and water.
मतलब सिंपली मैं बता दूं कि हमारे घर के अंदर मानो मम्मी पापा कोई भी हमारे घर के अंदर किचन में काम कर रहा है ना, मोस्टली मम्मा करती है, हम लोग जानते हैं, पापा तो नहीं करते, बट सपोज कर रहे हैं, कोई गर्म बर्तन है, उस गर्म बर्तन के ऊपर हमने थोड़ा शुगर डाल दिया, हैपेंस, कोई तो गर्म बर्तन है और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा शुगर डाल दिया, तो शुगर डालने के बाद होगा क्या, शुगर हीट करने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगा जो ऊपर वेपर्स के फॉर्म में जाता है और वाटर वेपर्स में जाते हैं, या फिर कार्बन को और भी ज्यादा देंगे तो कार्बन नीचे बढ़ेगा, उसमें से भी ऑक्सीजन निकल जाएगा, दैट हैपेंस, है ना। हम देखते हैं कि घर में कभी कभी रोटी वोटी जल जाता है, तो जल जाने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर का सिर्फ कार्बन नीचे बचता है और बाकी सब निकल जाता है। जलने का प्रोसेस ये होता है हमारे घर के अंदर, जब रोटी जल जाती है तो इसका मतलब है कार्बन नीचे रहता है, बाकी सब उसमें से निकल जाता है। तो शुगर की भी बात वही है कि शुगर को हम हीटिंग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलेगा और वाटर उसमें से निकल जाएगा, तो शुगर कन्वर्ट होता है, शुगर कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। अभी देखिए हमारे घर के अंदर का शुगर है, क्या हम ये डेयर कर सकते हैं, क्या हम ये डेयर कर सकते हैं कि मामा को बोलेंगे मामा चलो कोई बात नहीं, मुझे एक आधा किलो शक्कर दे दो, शुगर दे दो, उसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट करके दे दूंगा, है ना, कर सकते हैं हम लोग। दैट इज शुगर लेंगे, उसको हीटिंग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, वाटर भी उसमें से निकल जाएगा, सेपरेट सेपरेट होगा। तो शुगर को हमने कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अभी ऐसा हो सकता है क्या कि हमने थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के ले लिया, फिर हमने थोड़ा सा वाटर ले लिया और दोनों को मिक्स करके वापस शुगर बना के दे दिया, देखो ममा और देखो डैड, दिस इज द magic what I have created, what I have done. I have taken the sugar, I have taken the carbon dioxide, I have made a sugar from this one. This is difficult. I'm not saying it's impossible, but as of now it is difficult. As of now it is difficult because this is irreversible reaction. This is the reaction in which this is the reactant which can be converted into product. इस रिएक्टर को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला के हम लोग वापस शुगर तैयार नहीं कर सकते हैं। That's why this reaction is called as irreversible reaction. वो irreversible है, वो irreversible है। उसका दूसरा कि अपने डेली रूटीन में एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, अभी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हो और यू आर वेटिंग ईगरली फॉर योर कॉलेज लाइफ टू एंटर, है ना, और इट्स अ वेरी बैड लक ऑफ योर बैच, you were entering into the 11th standard, that is college and all, and at that time suddenly this lockdown has came up, and that's why you are not able to go to the college, and till that you are not able to enjoy that. आप बोल सकते हो चलो यार एक साल से छोटे हो जाते हैं हम लोग वापस, या कभी ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल डेज काफी अच्छे थे, चलो हम लोग छोटे हो जाते हैं। इज इट पॉसिबल देन अगेन टू गो बैक टू द स्कूल डेज? या हम स्कूल में जा सकते हैं बैक, लेकिन वो एज, एज एक ऐसा फैक्टर है हमारा, हमारी ग्रोथ एक ऐसे फैक्टर है जो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। कल हम जितने बड़े थे आज उससे एक दिन से बड़े हो चुके हैं, परसों और एक दिन से बड़े बनेंगे, हम छोटे नहीं बन सकते। छोटे बनने का नाटक कर सकते हैं लेकिन एक्चुअली छोटे नहीं बनेंगे, एक्चुअली छोटे बन बन के हम लोग स्कूल में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये वाटर फॉल्स डाउन, वाटरफॉल देखते हैं आप लोग, वाटरफॉल देखते हैं, तो वाटरफॉल होता है, कभी कभी ऐसा देखे कि आपने वाटरफॉल देखने गए थे और नीचे का पानी सडनली ऊपर चला गया। वाटरफॉल हमेशा होता है कि वाटर फॉल्स डाउन, and that is called as a waterfall only. That is also irreversible process. So these are the processes which could not be reversed. मतलब नॉर्मल कंडीशन में उन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता। देखिए वापस ऐसा नहीं कि साइंस के अंदर रिवर्स नहीं किया, हाँ वाटरफॉल जैसा पानी ऊपर लेके जा सकता है। अभी हम लोग जैसे पुणे मुंबई सिटी में रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं तो नीचे मोटर लगा के पानी ऊपर तो खींचते हैं ना, तो जिस तरीके से वाटरफॉल होता है उस तरह से पानी ऊपर खींच सकते हैं हम लोग मोटर लगा के, लेकिन उसके लिए काफी सारा ताकत लगाना पड़ता है, आर्टिफिशियली अरेंज करना पड़ता है। सो दैट कैन बी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस रिएक्शन के अंदर मैं यही बता रहा हूं आपको कि दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार आपने शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट कर दिया, वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके उससे हम लोग शुगर नहीं बना सकते अभी फिलहाल में, या नॉर्मल कंडीशन में नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई these reactions are called as irreversible reaction. So such a reactions in which reactant react to form product, but in turn products do not form reactant again is called as, you can say, irreversible reaction. Okay, let's come to opposite to this one. Then we can have these reactions. This is calcium carbonate. Calcium carbonate. This calcium carbonate decomposes to produce calcium oxide and carbon dioxide. Yeah, this hydrogen reacts with chlorine to form HCl. या फिर hydrogen reacts with nitrogen to form ammonia. There are many reactions which are called reversible reaction. So one more example I will put, जो आप जानते हो, that is, you can say N2 plus thrice H2 produces N2 plus thrice H2 produces twice NH3. ये reaction, ये तीनों रिएक्शन है ना रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, बट दैट हैज टू बी आर्टिफिशियली कैरिड आउट। मतलब
ये तीनों रिएक्शंस को आपको क्लोज बीकर में कंडक्ट करना पड़ेगा। क्लोज बीकर में, क्लोज बीकर मतलब आपका कंटेनर होगा, सपोज दिस इज द कंटेनर जिसके अंदर ये रिएक्शन आप कर रहे हो, और इस कंटेनर को हमें ऐसा क्लोज करना पड़ेगा। अब इस कंटेनर के अंदर देखिए, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारे इनिशियल रिएक्टेंट है, और ये दोनों रिएक्ट होने के बाद हमें अमोनिया तैयार होने वाला है। तो इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट होकर अमोनिया तैयार हो जाएगा, लेकिन दिस अमोनिया इज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड ऑफ दिस कंटेनर। इस कंटेनर से बाहर नहीं जाएगा, कंटेनर क्लोज करके रखा है, तो सब कुछ जो कंटेनर के अंदर ही रहेगा, यही रहेगा। सो ये सब सारी चीजें भी इसके अंदर रहेगी। सो दिस रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। द रीजन बिहाइंड दैट, हमारे पास शुरुआत में सिर्फ नाइट्रोजन हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट होकर हमें अमोनिया मिलता है, और अमोनिया ब्रेक डाउन होके वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलता है। सो दिस इज द रिएक्शन व्हाट हैपेंस, दिस इज द रिएक्शन व्हाट वी कैन सी। समझ रहे हैं सब लोग? सो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट होके अमोनिया मिलता है, एट द सेम टाइम अमोनिया वापस डिकम्पोज करके अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तैयार किया जा सकता है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिलता है, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट तैयार किए जा सकते हैं, होते हैं सिंपल कंडीशन में, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इस रिएक्शन को जैसे क्लोज वेसल में कंडक्ट करेंगे तो ये अपने आप प्रोसेस होता रहता है, एंड दैट्स व्हाई सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो इसलिए मैंने बोला कि देयर आर मेनी नेचुरल प्रोसेसेस व्हिच आर इरिवर्सिबल। जैसे कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम बड़े ही बनते जाएंगे, छोटे नहीं बन पाएंगे हम लोग, है ना। हो सकता है कि आने वाले दिन में से तुम्हें से कोई एक जीनियर साइंटिस्ट बाहर आएगा और वो ऐसा कुछ तो साइंस बनाएगा, टाइम मशीन बनाएगा, है ना। हमने फिल्मों के अंदर देखा है कि देयर इज अ टाइम मशीन लाइक कांसेप्ट वेयर वी कैन रिवर्स द थिंग्स। हॉलीवुड में फिल्में बनी है, बॉलीवुड में फिल्में बनी है टाइम मशीन के बारे में, तो शायद ये आप जानते हो, कि हमें भी लगता है यार ऐसा कुछ होगा मैजिक, तो मजा आएगा जिंदगी में। बट दिस आर एज ऑफ नाउ इमेजिनरी थिंग्स, रियल लाइफ में हम इस चीज नहीं लेके आ पाए रहे। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि growth of human being is a irreversible process. Fall of water is always a irreversible process. Expansion of gas is always a irreversible process. है ना? Expansion of gas is a irreversible process. But there are some certain processes which can be reversed, which can be reversed. So like this one. So there are some reactions which can be reversed. In these reactions, reactant react to form product. In turn, product also forms a reactant. Reactant से product मिलता है, product से वापस reactant मिलता है, उन्हें हम लोग reversible कहते हैं। और इस reaction में क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस वन। तो वी कैन हैव दिस एग्जांपल, ये कई सारे एग्जांपल्स इसमें से है। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों अगर रिएक्ट करते तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। दिस रिएक्शन हैज टू बी कैरिड आउट क्लोज्ड वेसल, तो ये मिलेगा। अभी इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, दिस हैज टू बी आर्टिफिशियली अरेंज्ड। आर्टिफिशियली अरेंज्ड, आर्टिफिशियली अरेंज मतलब कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम तरीके से मतलब इसे करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे बिल्डिंग के ऊपर मानो पानी का टंकी होता है, और पानी का टंकी बिल्डिंग के ऊपर है, तो वो सारे अपने आप पानी सारे फ्लैट में नीचे चला आएगा। लेकिन उस टंकी के अंदर पानी अगर छोड़ना है तो बड़ी मोटर लगा के मोटर से पानी ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो मोटर से पानी ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से वापस पानी नेचुरली नीचे चलाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, समझाता है ना। तो बिल्डिंग में अगर हम रहते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर पानी का बड़ा टैंक है, उसमें से नेचुरली ड्यू टू ग्रेविटेशन पानी नीचे चला आता है। लेकिन उस टंकी के अंदर पानी भरने के लिए हमें बड़े मोटर से पानी वहां पे लेके जाना पड़ता है, तो दैट हैज टू बी आर्टिफिशियली अरेंज्ड। तो ऊपर के टाकी में पानी हम लोगों को मोटर से डालना पड़ता है, वो आर्टिफिशियली अरेंज करना पड़ता है। रेन वाटर अपने आप नीचे आता है, डैम का वाटर वाटरफॉल से अपने आप नीचे चला आता है। सो दीज आर नेचुरल प्रोसेसेस। बट अगर पानी ऊपर भेजना है, फाउंटेन्स तैयार करने हैं, तो हमें वो आर्टिफिशियली अरेंज करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तरीके से। So if this reaction is carried out in a container, closed container, then and then only it will be reversible reaction. So reversible reaction is artificially arranged. Whereas these processes are very natural processes. Most of the natural processes are irreversible. है ना? Most of the natural processes are irreversible. जैसे मैंने बताया कि growth of human being is a natural process. Waterfall is a natural process. Expansion of gas is a natural process. तो ये जो irreversible process होते हैं वो जनरली नेचुरल प्रोसेस होते हैं, ये इसके अंदर की बात है। देन irreversible process is denoted by single arrow, denoted by, see, denoted by a single arrow pointing towards the product, pointing towards the change। किसी भी रिएक्शन में जो चेंज हो रहा है वो चेंज के डायरेक्शन में एरो होता है। सो दैट्स व्हाई irreversible reaction is denoted by a single headed arrow pointing towards the product, इस तरीके से दिया जाता है। और इस रिएक्शन की बात करते हैं तो दिस रिएक्शन इज डिनोटेड बाय, ये देखिए आप, डबल हेडेड एरो। वो दो तरीके से लिखा जाता है, एक ऐसा तरीका लिखने का है, ये एरो इस तरफ और ये एरो उल्टा।
या फिर एक दूसरा तरीका है हाफ एरो लाइक दिस वन और ये हाफ एरो लाइक दिस वन। आप दोनों में से कैसे भी दिखा सकते हो। दिस इज द वे हाउ वी कैन डिनोट दिस रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे मैंने एरो दिखाया। सो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाने का ये तरीका है। आप ऐसे भी एरो निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, पूरा कंप्लीट एरो ऐसे, ये हाफ एरो कहा जाता है, ओनली वन साइड, लेकिन ये इस तरफ है, इस तरफ। सो इस रिएक्शन को डिनोट करने का तरीका है। तो इस एरो से पता चलता है कि दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दिखाने का तरीका है। और अगर ऐसा एरो होता है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, सिंगल एडेड एरो, दिस ये एरो क्या बताता है, दिस आर द रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू दिस प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से वो दिखाया जाता है। और यहाँ पे तो ये तरीके से दिखाया जाता है। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ दिस रिवर्सिबल रिएक्शन इज डिनोटेड लाइक दिस वन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरीके से डिनोट किया जाता है, दैट से डबल हेडेड एरो से, और ये सिंगल हेडेड एरो से दिखाया गया जाता है। ठीक है, already we are seeing this is very artificially arranged, and this is very, you can say, natural processes. इसके अंदर maximum work is obtained. अभी इस चलो ये पॉइंट की जरूरत नहीं है ज्यादा, ये पॉइंट के लिए हम लोग 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे ये टॉपिक, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। वापस एक बार 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करना है, तो वो वहां पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे और एक पॉइंट होता है कि दिस वो गोज इन टू डायरेक्शन, दिस गोज इन टू डायरेक्शन, and this reaction goes in only one direction. Means this process proceeds in one direction. So irreversible reaction proceeds only one direction. ये reaction सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, रिवर्स नहीं जा सकते। इट गोज इन ओनली वन डायरेक्शन। सो डायरेक्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन हमेशा वन डायरेक्शन में चलेगा। Whereas इस रिएक्शन की बात करते हैं, ये दो डायरेक्शन में चल सकता है, और ये दो डायरेक्शन होते हैं, फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स रिएक्शन। अब देखिए, this is called as forward reaction, forward direction, and this is called as reverse direction. So two directions होते हैं, एक होता है this is like this one, this is called as forward, and ये इस तरीके जो आता है, this is called as reverse direction, इस तरीके से reverse. So देखिए, forward towards the product, reverse towards the reactant. मतलब प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्स, आल्सो कॉल्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस रिवर्स के बदले यहाँ पे बैकवर्ड वर्ड यूज किया जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वी कैन से दिस रिएक्शन प्रोसेस इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज यू कैन से फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज यू कैन से बैकवर्ड डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चल सकता है, दैट इज यू कैन से इरिवर्सिबल रिएक्शन, एंड दैट इज व्हाट यू कैन से रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी देखिए, we have to actually discuss the equilibrium here in this process, equilibrium here in this process. अभी ये जो रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके अंदर इक्विलिब्रियम अचीव होता है, इक्विलिब्रियम अचीव होता है, और हियर नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम इज देयर, इक्विलिब्रियम नहीं आता है इस रिएक्शन के अंदर। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आता है, इसके अंदर इक्विलिब्रियम आता है। वही एक्चुअली डिस्कस करना है कि हाउ दिस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, हाउ दिस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। इक्विलिब्रियम होता है, इट इज अ बैलेंस स्टेट between two of the phases or two of the stages, and that's what we discuss here कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम आता है। तो हमारा जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसी के अंदर इक्विलिब्रियम आता है। तो हाउ टू हैव द रिवर्सिबल रिएक्शन इन ऑर्डर टू हैव द इक्विलिब्रियम। ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कभी नहीं आ पाएगा, नेवर गोस टू द इक्विलिब्रियम। ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा, दो डायरेक्शन में नहीं चल सकता। लेकिन दिस इज द प्रोसेस व्हिच प्रोसीड्स इन बोथ ऑफ द डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स या फिर बैकवर्ड। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम, उसके अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, तो हमें यही डिस्कस करना है कि इस रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम आता है वो किस टाइप का होता है, क्या इक्विलिब्रियम आता है, ये हमें अभी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। सो होप सो एवरीवन गॉट दिस। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम, वेयर वी हैव सीन व्हाट इज द रिएक्शन एक्चुअली, what is the irreversible reaction, what is the reversible reaction, and then we have to proceed for the next, that is called the equilibrium process. तो अभी equilibrium process basically होता क्या है, हम समझ जाते हैं कि it is the state of balance between two of the states. अभी इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। हम इस चैप्टर के अंदर मेनली डील करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। वी आर गोइंग टू मेनली डील विद द केमिकल इक्विलिब्रियम, बट फिजिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस करना पड़ेगा। सो we have to discuss this equilibrium, and equilibrium के अंदर we have to discuss a physical equilibrium। तो physical equilibrium का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं हमारे घर के अंदर फ्रीज होता है। 0 डिग्री बिलो वी हैव द आइस स्टेट, एंड 0 डिग्री अबव वी हैव द लिक्विड स्टेट ऑफ द वाटर। तो वाटर का लिक्विड स्टेट होता है और वाटर होता है, और 0 डिग्री बिलो वी हैव आइस स्टेट।
तो 0 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे दोनों स्टेट एग्जिस्ट होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 0 डिग्री पे आइस होगा और 0 डिग्री पे वाटर, 0 डिग्री पे दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अभी ये पॉइंट अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट तो अंडरस्टैंड होता है। तो 0 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे आइस स्टेट दैट इज सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज दोनों एग्जिस्ट करता है। वाटर के केस में liquid phase and solid phase, and this is the equilibrium between solid and liquid phase of the water. 0 degree temperature. So that is very important thing that this is the kind of equilibrium which is called as physical equilibrium. The equilibrium between the two phases of the same substance is called as physical equilibrium. So 0 डिग्री कैसा टेम्परेचर है पे उसका सॉलिड फेज और उसका लिक्विड फेज दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होते हैं। दैट इज कॉल्ड as you can say equilibrium. So that is what we are going to discuss tomorrow. That is what is physical equilibrium and what is chemical equilibrium, and we'll go ahead factors affecting the chemical equilibrium. So that is the introduction of the chapter and enter with this reversible irreversible reaction. So hope so everyone got it, and next part we'll discuss it tomorrow. So till then, thank you very much.